مسیح کا فضل، اطمینان اور تسلی آپ سب کی زندگیوں میں بنی رہے۔ بروڈ جو ہے اس کو 6 گھنٹہ لگنے والا ہے، آلموسٹ 7 منٹس لیس جو ہے۔ بہت بہت خوبصورت شیئرنگ ہوئی۔ پاسٹر اختر نے بڑے خوبصورتی سے کلام کو شیئر کیا۔ ریورنڈ سیم نے ہمیں جو ہے کرسچینٹی کے 4 جو پلرز ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ موسیٰ بھائی نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے پاک روح کے حوالے سے بات کی، اور جو آج کا ہم نے میسیج لیا تھا یا جس پہ ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں وہ لوکا کی انجیل اور اس کی 26ویں آیت سے 58 تک کا جو پیسیج ہے، ڈیورنگ دس ٹائم واٹ ہیپنڈ، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو جو ابھی ہمیں سننے والے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی اوپر آ کر جو ہے اس کا حصہ بننا چاہتا ہے، شیئرنگ کا حصہ بننا چاہتا ہے، تو آپ ضرور ریکویسٹ ڈالیں تاکہ ہم کنٹینیو جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے اور جو ڈیورنگ دا پریپریشن آف ہز برتھ جو ایونٹس ہو رہے تھے، سیلیبریشنز ہو رہے تھے، ان کے بارے میں بات چیت کریں۔ تو جیسے موسیٰ بھائی نے بات کی، بیٹیاں جو غیر اقوام میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ناہموار جرم میں جت جاتی ہیں، یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا، کیونکہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے چاہے ہم کوئی بھی سیلیبریشن کر رہے ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، نوجوان نسلوں کی تربیت بھی کرنی ہے، انہیں بتانا بھی ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ ہیلیلویا۔ تو جو نئے بہن بھائی ہیں جن کو میرے بارے میں نہیں پتہ، میں اینجل پاول، امریکن اینجل کی آئی ڈی سے ایوری ویکلی آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ لائیو آؤں، کرسچن بروڈ کو لگایا جائے، جہاں پر صرف اور صرف مسیحی بہن بھائی اوپر آتے ہیں اور اپنی اپنی خدمت کے مطابق جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ہم غیر اقوام کے لوگوں کو ویلکم نہیں کہتے، وہ بھی ویلکم ہیں، لیکن وہ نیچے بیٹھ کے سنیں۔ اگر ان کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے وہ نیچے کمنٹ کریں، اگر ان کا کوئی کویشچن ہے تو ہمارے پاس بہت سے ایسے خداوند کے خادمین ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ڈفرینٹ بروڈز ہیں ہماری، جن پہ آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان بروڈ کا حصہ بنیں اور اپنا کمپلیٹلی جو بھی آپ کا کویشچن ہے یا کنفیوژن ہے یا کچھ بھی ہے آپ اسے شیئرنگ کریں۔ ہیلیلویا۔ تو وحید بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ ریکویسٹ بھیجیں، آپ اوپر آئیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ضرور جو ہے خداوند کے خادم ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور شیئرنگ کریں۔ تو میرا تعلق پاکستان سے ہے، میں نے پاکستان سے جو ہے اپنی میں نے خدمت کی اوور 18 ایئر، سنڈے اسکول کی خدمت سے لے کے یوتھ منسٹری تک، اور اس کے بعد اسسٹنٹ پاسٹر، اور دین جو ہے ایز اے فیمیل منسٹر جو ہے پاکستان میں مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا۔ 2010 میں جو ہے خدا نے مجھے موقع دیا کہ آئی بیکم اے بیتھیل فیلوشپ ویمنس منسٹری فاؤنڈر جو ہے، اور خداوند نے مجھے اس سے بہت بہت برکت بھی دی اور بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی دیا۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں زندگی کے ان سارے تجربات کے لیے۔ جس بات کو ابھی میں کرنے والی ہوں اسی پیسیج سے ریلیٹڈ، یہ بڑی ایک ہمارا ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، ہماری پاکستان کلیسیاؤں میں اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، ہمارے میلز پاسٹرز اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور جو ہماری پاکستان کی فیمیلز ہیں، کرسچنز فیمیلز جو ہیں، جو کانگریگیشنز کا حصہ ہیں، وہ ایک خوف میں زندگی گزارتی ہیں۔ میں جو ہے فل رسپانسبلٹی لیتے ہوئے جو ہے اس بات کو کرنے والی ہوں، پاک روح کی ہدایت کے ساتھ۔ شیئرنگ کے بعد اگر کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاسبان بھی ہیں، ریورنڈ سیم ہیں، پاسٹر اختر ہیں، پاسٹر وحید ہیں، اور جتنے بھی خدا ان کے خادمین فاریو پہ بھی ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ ضرور جو ہے میری شیئرنگ کے بعد ضرور بات کیجیے گا اس کے اوپر بھی۔ یہ جو پیسیج ہم نے پڑھا ہے، اس پیسیج میں ہمیں 2 پریگننسیز کے بارے میں ملتا ہے۔ ایک پریگننسی جو ہے وہ یسوع مسیح کی ماں مریم کی بابت ہے۔ سیکنڈ پریگننسی جو ہے وہ ہمیں الشبا کی ملتی ہے۔ مریم کو جب فرشتے نے بتایا کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اس کے ساتھ روح القدس اسے ایک اور خوشخبری بھی بتاتا ہے کہ تیری جو بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، یا بہن ریل میں خالہ زاد کی جو بیٹی ہے، اس کے بھی بیٹا ہے، بڑھاپے میں بیٹا ہے، وہ بھی پریگننٹ ہے،
اسے خوشخبری دی گئی ہے. تب مریم جو ہے اس کا فرسٹ ٹیمیسٹر آپ اس کا حساب لے لیں جو نیو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کی ٹرم, اور جو الشبا تھی اس کا سیکنڈ ٹیمیسٹر جو ہے وہ چل رہا تھا, چھٹا مہینہ جو ہے. اور جب اگلی آیات کو ہم پڑھتے ہیں مریم کے گیت کے بعد جو ہے وہاں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ مریم جو ہے 3 ماہ تک جو ہے الشبا کے ساتھ رہی. دیٹس مین کہ مریم نے اپنی پریگنینسی کے 3 ماہ فرسٹ 3 منتھس جو ہیں وہ الشبا کے آخری 3 منتھس کی جو پریگنینسی ہے اس کے ساتھ گزارے. ایک بڑی بابرکت بات ہے کہ خداوند کا جو پیغمبر یوحنا رسول جو ہیں اور یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا بیٹا جو ہے مریم کے پیٹ میں جو ہیں 3 ماہ جو ہیں وہ اکٹھے رہے. ہلیلویا, بڑی خوبصورت بات ہے. میں جب بھی اس چیز کو ویژن میں لاتی ہوں, سوچتی ہوں اس کے بارے میں, میرا دل بہت بہت خداوند کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے. سیکھنے کی بات ہے, اسپیشلی جو نئے بلیورز ہیں, جو کرسچینٹی کا بلیو ہے کہ لائف بگنز ایٹ دا کنسیپشن. جب میاں اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے زندگی تب ہی سے شروع ہو جاتی ہے. آمین. اگر آپ اس سے ایگری ہیں تو ضرور جو ہے نیچے آمین لکھیں, اپنا کمنٹ دیں کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. مسیحیت میں جو زندگی شروع ہو جاتی ہے وہ میاں بیوی کے ملاپ ہی سے شروع ہو جاتی ہے. اسی پیسیج کے جو پہلی آیات ہیں, پہلے باب کی 26ویں آیت کا جو پہلا حصہ ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ جو ہے مریم کے پاس آتا ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے اور فرشتہ اسے کہتا ہے کہ خوف نہ کھا. ہیلیلویا. کیا کہتا ہے؟ خوف نہ کھا. جس کلچر سے میرا تعلق ہے اور بہت سے یہاں پر ریلیٹڈ کر پائیں گے, جو ان ایکسیپٹیڈ یا ان پلانڈ پریگنینسیز ہوتی ہیں ہمارے کلچر میں, وہ خوف کو جو ہے فیملیز میں طاری کر دیتی ہیں. اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ایک بڑا ٹائم ملا پاکستان میں ویمنز منسٹری کرنے کا, جہاں پر بہنیں آپ سے آ کر وہ باتیں شیئرنگ کرتی ہیں جن کو وہ اپنے ہسبینڈ سے, اپنے سسرال سے, اپنی کانگریگیشن سے یا کسی اور شخص سے نہیں بتا پاتی. اسی وجہ سے چرچز میں فیمیل منسٹرز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور میں بات یہ کیوں کرنے جا رہی ہوں, کیونکہ میں ایک پرو لائف موومنٹ کی ممبر بھی ہوں. پرو لائف کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے زندگی کی فیور کرتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں. اور کون سی زندگی پائیں؟ کثرت کی زندگی پائیں. ہیلیلویا. کثرت کی زندگی پائیں. کثرت کی زندگی جو ہے خداوند کی طرف سے بخشش ہے. تو بینگ اے فیمیل منسٹر جو ہے مجھے بہت سی ایسی باتیں سننے کو بہنوں کے ذریعے سے ملیں کہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو گرا دیں, پریگنینسی کو گرا دیں, بچے کو ضائع کر دیں. ٹھیک ہے, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آج تک کبھی کسی نے اس پلیٹ فارم پر اس طرح کی کھلے میں باتیں نہیں کی ہوں گی. لیکن جیسے پاسٹر اختر کہہ رہے تھے کہ ہم نے دلیری سے جو ہے بات کرنی ہے, اور اگر ہم بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اور خاص طور پر جیسے جو ہماری نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں, آیا آپ میریڈ ہیں, ان میریڈ ہیں یا کسی بھی حصے میں ہے عمر کے, آپ کا ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے پاکستان میں اس طرح سے بات نہیں کی جاتی, لیکن جب میں ابراڈ میں شفٹ ہوئی امریکہ میں, اور ہمارے چرچز میں ہمیں سکھایا جاتا ہے, تربیت دی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے, دین آئی گیٹ مور کانفیڈنٹ کہ اس کے اوپر بات چیت کرنا جو ہے بہت بہت ضروری ہے. تو آیا آپ نامینل کرسچن ہیں یا پاسٹرز کی فیملیز کا حصہ ہے؟
یا ان فیملیز کا حصہ ہیں جو خدمت میں ہے کسی بھی طور سے. آپ ورشپ کر رہے ہیں, سنڈے اسکول کے یوتھ منسٹر ہیں, کسی بھی طرح کی خدمت ہے آپ کے پاس, لیکن اس کے باوجود جو ہے ایکسیڈنٹلی بائی مسٹیک یا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ جو ہے یا آپ کا پارٹنر وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو بیبی ہے وہ ضائع ہوا ہے, تو آپ جو ہے اس کے جوابدار ہوں گے, آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. کیونکہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ لائف بگنز جو ہے ود کنسیپشن جو ہے, جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الشبا اور ان کا جو ہسبینڈ ہے کاہن ہے, جب ان کا ملاپ ہوا اور خداوند کے فضل سے جو ہے خدا نے انہیں یوحنا رسول جیسا جو ہے بیٹا دیا. ٹھیک ہے, جیسے مریم کا جو ہے خداوند, مریم جو ہے یسوع مسیح کی جو والدہ ہیں, ان کی واحد ایسی پریگنینسی ہے جو پوری بائبل میں سے جس کی کوئی اور ہمیں مثال نہیں ملتی. لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں, نارمل لوگ جو ہیں جو شادی شدہ ہیں, اور جیسے جن کنٹریز میں ہم ہیں وہاں پر شادی کے بغیر بھی جو ہے پریگنینسیز ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی, اگر آپ کی جو نان بلیورز لوگ ہیں, اگر آپ کی پریگنینسی جو ہے شادی کے بغیر بھی ہے, کوننٹ کے بغیر بھی ہے, تو بھی نو باڈی گیو یو اتھارٹی کہ آپ اس بیبی کو ضائع کریں, بیکاز دیٹ بیبی از گیون بائی دا گاڈ. یہ خداوند کی بخشش دی گئی ہے آپ کو, اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس بیبی کی بائی کنسیپشن ٹو ٹل ڈلیوری ٹائم اور آفٹر ایون ڈلیوری اس کی ٹیک کیئر کریں. خداوند لوگوں کو چنتا ہے اور برکت دیتا ہے. تو کبھی بھی, کیونکہ میں نے پاکستان میں کافی ایسی سٹوریز سنی ہیں کہ ایون پاسٹرز فیملیز جو ہیں, جو پاسٹرز کی مسز ہیں, وہ بیبیز جو ہیں گرا دیتی ہیں, اور یہ پوشیدہ گناہ ہیں جن کی معافی مانگنا بہت بہت ضروری ہے. کیونکہ مسیحیت ایک ایسا ریلیشن شپ ہے ہم یسوع مسیح میں حاصل کرتے ہیں جہاں پر ہم نے زندگی کو بولنا ہے اور زندگی کو پروان چڑھانا ہے, ڈیتھ کو نہیں لانا. ہیلیلویا, ڈیتھ کو ریبیوک کرنا ہے, ہمیں اپنی فیملیز میں زندگی کو بڑھانا ہے. اس پیسیج کا جو ہے گو کہ ہم یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ جو پیسیج ہے یہ پریگنینسیز کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو مجھے خداوند نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آئی شوڈ اسپیک اباؤٹ دس, کیونکہ جہاں پر ہمارے چرچز اس کے اوپر بات چیت نہیں کرتے, اور انجانے میں جو ہے ہمارے جو نوجوان بیٹے بیٹیاں خاص طور پر جو ہیں وہ بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیں جو ہے لیڈرز ہونے کے ناطے یا اپنی فیملیز کا بزرگ ہونے کے ناطے جو ہے ہم نے ہی جو ہے ہماری یوتھ کو, آئندہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے. اب یہاں پر مریم اور الشبا ہی کی مثال آپ لے لیں کہ مریم کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس کی زندگی میں کہ وہ ایک راست باز عورت تھی, اور جو الشبا تھی وہ بھی اور اس کا ہسبینڈ بھی راست باز تھے. مریم کا جو مگیتر تھا یوسف وہ بھی راست باز تھے, اور جوش کلچر کے مطابق جو ہے راست بازی کا ٹائٹل ایویں نہیں آپ کو مل جاتا تھا کہ صرف ٹھیک ہے جی یہ بروڈ لگا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو ان کو راست باز کا ٹائٹل دے دیں. اس کی ایک ڈیٹیل میں ہسٹری ہے. وہ لوگ باقاعدہ جو ہیں اپنے ریلیجن کی جو ہے ایجوکیشن لیتے رہے تھے, انہوں نے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹڈ کی فار سرٹن ٹائم کہ وہ لرن کر پائیں
کہ کیا ہے وہ خدا، کون سی باتیں ہیں وہ یہوہ پاک خدا باپ نے جو تواریخ میں لکھی ہیں، جو پرانے عہد نامے میں لکھی ہیں، کن باتوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں اپنی نوجوان بیٹیوں کے لیے اور خاص طور پر بیٹوں کے لیے بھی جو ابھی تک شادی شدہ بندھن میں نہیں بندھے، آپ ضرور جو ہے شادی سے پہلے کاؤنسلنگز لیں، ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ کے سیشنز لیں۔ اگر آپ کے پاسٹر یا آپ کے چرچز میں یہ سہولیات میسر نہیں ہیں تو بھی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ اپنے پاسٹر سے کہیں کہ ان ڈیٹس میں، جیسے چرچز میں جو ہے پکاریں دی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں ڈیٹ کو فلاں فلاں کا نکاح ہے، تو اگر کوئی کسی کو بھی کچھ ہے کوئی ایسی بات تو آپ ابھی ٹھیک ہے آ کر بتا سکتے ہیں، کیونکہ جب نکاح ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس دورانیے میں بیفور یو گیو ڈیٹس فار یور ویڈنگ، آپ اپنے پاسٹر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اور ان کی جو مسز ہیں فیمیل منسٹر، وہ آپ کو اور آپ کی مگیتر کو یا آپ یا آپ کے مگیتر کو جو ہے 3-4 کرسچن میرج لائف کے سیشن دیں۔ اور پاسٹرز صاحبان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ڈیورنگ دیز سیشنز جو ہیں اس بات کو بھی ضرور آپ ہائی لائٹ کیجئے کہ سم ہو اگر کبھی ان پلانڈ پریگنینسی ہیپنڈ ہو جاتی ہے تو اس بیبی کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو بائبل یہ کلنگ کے زمرے میں آتا ہے، یہ مرڈر کے زمرے میں آتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گی، میں نے صرف اپنا پوائنٹ ہی ہائی لائٹ کرنا تھا، تاکہ جہاں پر ہم یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں محفل ہے موقع ہے، تو محفل اور موقع کے مطابق جو ہے جس پیسج کو ہم کھنگال رہے ہیں ہر طور سے، ٹھیک ہے، پاکرو کے بارے میں بات کی، یسوع کے بارے میں بات کی ہے، اور کرسچینٹی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اس پیسج میں 2 عظیم عورتوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ عورتیں، اتنی بڑی عورتیں، دونوں کی پریگنینسی جو ہے بہت عجیب و غریب طور سے جو ہے ہمیں مل رہی ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دیٹس مین کہ اگر اس واقعے کا ذکر ہوا ہے تو پریگنینسیز جو ہیں یہ ایک برکت ہے، اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ ہمارے چرچ صرف ایک سیلیبریشن کی حد تک نہ رکھیں، اس کو ایز اے اپرچونٹی لیں، اس پیسج کو، اور اپنی کنگریگیشنز کو جو ہے آپ ایجوکیٹ کریں کہ ان پیسجز کے وسیلہ سے ہماری نوجوان بیٹیاں جو ہیں وہ سیکھیں۔ میرے ڈیڈ جو ہے، میں ہمیشہ ان کی فار ایور شکر گزار ہوں کہ بیٹی ہونے کے ناطے بھی تو بھی انہوں نے بیٹوں اور بیٹیوں میں کوئی ڈفرینس نہیں کیا۔ جہاں پر میرے بھائیوں نے جو ہے بائبل کالجز کی اور سیکولر تعلیم حاصل کی، وہیں پر انہوں نے مجھے اور میری سسٹر کو بھی بائبل کالجز کے ساتھ ساتھ سیکولر تعلیم کی بھی جو ہے بھیجا ہمیں، اور نہ صرف بھیجا بلکہ ہمیں انوالو کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جہاں پر میرے ڈیڈ کو خدمت کے لیے بلایا جاتا تھا، میرے ڈیڈ مجھے کہتے تھے کہ آپ میسج پریپیئر کر لیں اور آپ نے جا کر میرے ساتھ جو ہے خدمت کرنی، یہ کلام آپ نے سنانا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح مینٹلی پریپیئر کریں، روحانی اور جسمانی طور پر بھی، کہ وہ اس طرح کا گناہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ کرنے پائیں۔ اگر سم ہو جو ہے، کیونکہ زندگی ہے، زندگی میں طرح بطرح کی آزمائش آ سکتی ہے، سم ہو جو ہے آپ کا پارٹنر آپ کو فورس کر رہا ہے کہ آپ ابورشن کروائیں، یا آپ کے ان-لاز کی طرف سے پریشر ہے، تو بات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ آپ ضرور جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں، اپنے پاسٹر سے کاؤنسلیشن لیں، ضرور بتائیں، خدا پرست لوگوں کو بتائیں، سیکولر لوگوں کو نہیں، کیونکہ سیکولر دنیا بھری پڑی ہے جو ابورشن کروانے کی فیور میں، اور بہت سے مذاہب میں بھی آپ کو بات مل جائے گی اس طرح کی جو ہے۔ پاکستان میں سیکرٹلی کرواتے ہیں، سیکرٹلی میڈیسنز دیتے ہیں، جن کنٹریز میں ہم ہیں وہاں پر اوپنلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن دنیا کے ہر ایک کونے میں جو ہے یہ گناہ پھیل چکا ہے۔ اس گناہ کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کم ہوتی ہے کیونکہ ابلیس چاہتا ہے
کہ خدا ترس نسل نہ بڑھے. تو میری آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے، اور جتنی بہنیں بھی اس پلیٹ فارم پر سن رہی ہیں، آپ ضرور اپنی سسٹر سے بات کریں، اپنی بیٹیوں سے بات کریں، ان کو مینٹلی پرپیئر کریں اس بات کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، بخشش دیتا ہے، اور اس کو کسی بھی طور سے ٹھکرانا ہم پر واجب نہیں. سیکنڈلی، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. جو عورتیں ابورشنز کرواتی ہیں، اس کا نقصان جو ہے ان کی ہیلتھ پر بہت بہت نیگیٹو ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ٹراما کا شکار ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اس طرح کے گلٹ سے بچنے کے لیے، ٹرامے سے بچنے کے لیے اپنی آخرت کو بھی بچائیں. اور اس طرح کا کوئی بھی اگر ڈیسیژن لائف کبھی آپ پر تھرو آؤٹ کرے، اس طرح کی آزمائش آپ پر لے کر آئے، تو آپ مینٹلی پرپیئر ہوں کہ کسی ایک براڈ پر سسٹر اینجل نے یہ بات کہی تھی، شیئر کی تھی پبلکلی، اور میں نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے. ہلیلویا. کیونکہ جیسے مریم نے کہا کہ میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. آپ بھی خدا کی بیٹیاں ہیں، چاہے کیسے بھی حالات ہیں، آپ نے اس مریم کے خوشی کے گیت کو گانا ہے اور ہمیشہ یسوع مسیح کی شادمانی میں قائم رہنا ہے. خداوند آپ سب کو اس کلام کی شیئرنگ کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. تو میرے سینئرز میرے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ گو کہ دیر واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ شیئرنگ بیکاز آف ویمن منسٹری کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گی کہ وہ بھی اس کے اوپر ضرور بات کریں، کیونکہ بائبل کے روح سے نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت، ہم سب یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں. اینڈ وی آل ٹیک اے فل رسپانسبلٹی. شیئرنگ از کیئرنگ. تو آپ ضرور اپنا کنٹریبیوشن دیں پلیز. اور میں خود ہی ان کو پڑھ دیتا ہوں. پہلا باب اس کی 27ویں آیت، پیدائش کی کتاب چیپٹر 1، بک آف جینیسس چیپٹر 1 ورس 27. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری پیدا کیا. اب دیکھیں آن ہز اون امیج خدا نے ہمیں اپنی شکل، اپنی صورت، اپنے جلوے، اپنے جلال پہ اس نے ہمیں پیدا کیا. تو جو انسان خدا کے جلال پہ پیدا ہوتا ہے، خدا کے امیج پہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح سے اس کو گرا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی زندگی ختم کر دی جائے. پھر بائبل ہمیں یہ زبور نویس بتاتا ہے، زبور 139 13ویں اور 14ویں دو آیات میں، سام 139 ورس 13 اور 14 میں اس کو پڑھیں کہ اس نے ہمیں ونڈرفلی اینڈ فیئرفلی بنایا. بڑا اس نے ہمیں مطلب ہم خدا کے مہناز شاکار ہیں جس کو اس نے بنایا. مطلب حسین و جمیل خدا کی تخلیق ہے ہم جسے اس نے بنایا. تو آئیے ذرا اس حوالے کو بھی پڑھ لیتے ہیں. سام 139 اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. یہاں پہ اس کے 13ویں اور 14ویں ان دو آیات میں اس طرح سے مندرج ہے کہ کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا. میری 13ویں آیت پڑھ رہا ہوں جی. میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی. لو سنتے جاؤ ساتھ ساتھ کس طرح ہر چیز میں خدا شامل ہے. اسی نے بنایا جو بچہ شکل پکڑتا ہے ماں کے پیٹ میں. میڈیکل سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے but still they don't know کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ ناخن اس کے کیسے بنتے ہیں، اس کی آنکھیں کیسے بننی شروع ہوتی ہیں، وہ کس ٹائم پہ یہ شروع ہوتا ہے پروسیس سارا. دنوں کہ یہ ہوتا ہے، پہلے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن کب اور کیسے ہوتا ہے they don't know. تو کیونکہ انسان کی حکمت لمیٹڈ ہے، محدود حکمت کے حامل ہم لوگ ہیں، لیکن خدا کی حکمت، پولس کہتا ہے اس کے فیصلے ادراک سے پرے. اس کی حکمت کو ہم نہیں چھو سکتے. تو اور ہم اس کی تخلیق سے مقابلہ کریں، مطلب ڈیفینیٹلی پھر احمق ہی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے. تو یہ
मेरी माँ के पेट में तूने मुझे सूरत बख्शी। 14वीं आयत, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबोगरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। मेरा दिल इसे खूब जानता है, इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि मेरा दिल इसकी मोहब्बत में गर्क है। एक इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है खूब जानने से, कि मैं इसकी मोहब्बत में गर्क होके महजूज होता हूँ। तो एक जिसको सेकुलर टर्म पे आप कह लो कि एक वजद का सा आलम तारी हो जाना। तो चूंकि क्रिश्चियन ब्रॉड है तो मैं क्रिश्चियन टर्म्स को ही प्रेफर करूंगा बजाय इसके कि दुनियावी टर्म्स जिनकी कोई वक़्त नहीं है। तो ये हमें नजर के उसने हमारी ये माँ के पेट में हमारे बेतरतीब मादे को देखा और वहीं से उसने हमें सूरत बख्शनी शुरू की और अजीब व गरीब तौर पे वो हमें बनाता है। यानी खुदा मौजूद होता है हमारे बनाने में। हर इंसान जो दुनिया में आया है खुदा उसको पहले से जानता है। एक और वर्ष पढ़ेंगे, इज़ाया चैप्टर 49 वर्स 1। यसाया की किताब सहीफा उसका 49वां बाब और उसकी पहली आयत, इसको भी हम तलावत करते हैं। तो 49:1 में लिखा है, ये देखिए इन आयत पे फोकस कीजिए। और मुझे ये आयत इसलिए भी अच्छी लगी कि बड़ी ही क्लासिक उर्दू का ढंग है इस आयत में, मैं उसको भी इंजॉय करता हूँ। बहुत अच्छी उर्दू लिखी हुई है उर्दू की बाइबल में। अजीजों मेरी सुनो, उम्मतो जो दूर हो कान लगाओ, खुदावन ने मुझे रहम ही से बुलाया। यानी खुदावन ने, कि इसको रहम कहते हैं लेकिन मैं स्टिल इसको रहम ही कहता हूँ क्योंकि हमें हे मीम के नीचे जो है जेर मिलती है तो मैं इसको ऐसे बुलाता हूँ। अब वो कहते हैं कई लोग इसको रहम, तो लेट देम से, बट आई डोंट से। फिर बतने मादिर, ये सच अमेजिंग वर्ड, कैसी क्लासिकल होती है। मादिर जो है फारसी में माँ को कहते हैं, तो बतने मादिर यानी माँ के पेट, बतने मादिर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया। अल्लाह दसो माँ के पेट में है तो तभी से वो हमारा तस्करा करता है कि मैंने इसको अपनी शबीह पे बना के इस खातून के बदन में से। ऐसे काम जब हम करते हैं तो आई रिमेम्बर देन अगेन एलिस का एक सर्मन कि जब ये हम अबॉर्शन के मरहले में से गुजरते हैं तो वी आर डूइंग अ ब्लडी जॉब, शी सेड इन आवर सर्मन। ये खून का काम हम करते हैं, कत्ल का काम हम करते हैं, हम कातिल बन जाते हैं, रूहों के कातिल, जिंदगियों के कातिल, जिनको खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबीह पे बनाया। पैदाइश की किताब में है, आओ हम, जब ट्रिनिटी पे लोग बात करते हैं आओ हम इंसान को मिलकर पैदा करें, तो खुदा ने कितने पूरी द होल ट्रिनिटी इज इन्वॉल्व इन इट व्हेन दे हैव टू क्रिएट ए मैनकाइंड, नस्ल इंसानी। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, तीनों के तीनों शामिल हैं कि इंसान को बनाया जाए, अपनी शबीह अपनी सूरत पे नाम लेकर बुलाया जाए। जस्ट इमेजिन जो वादे ओहूद हमें बाइबल में मिलते हैं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैं तुझसे दस्तबरदार होऊंगा, मैंने तेरी शक्ल अपनी हथेली पे छेद रखी है, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा जोर हूं, मैं तुझसे कब माँ अपने बच्चे को भूल जाए पर मैं तुझे हरगिज ना भूलूंगा। और इस तरह के जो वादे हमें बाइबल में मिलते हैं वो हमें हमारी पैदाइश, हमारी तख्लीक से पहले कलाम में नजर आते। तो इस तरह खुदा ने इंसान को बनाया। तो ये जो इमोशन का इसलिए फिर चक्कर है, बाइबल के मुताबिक ये कंप्लीटली गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब आयरलैंड की सोसाइटी आप देखें, आयरलैंड की सोसाइटी में आज भी मैं जब बाजी आयरलैंड में रहती थी तो
کچھ چرچز میں وہاں پہ وزٹ کیا, کلام سنایا, تو ان سے میں نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ آج بھی اگر شادی سے جسٹ نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا یورپین سوسائٹی, ایسی بھی ابھی لوگ ہیں سوسائٹی میں کہ آج بھی اگر کوئی لڑکی یا لڑکا ہمیں پتہ لگ جائے کہ they are in relation and they are having sex without getting married, we don't welcome them in the church. ہم نے چرچ میں نہیں آنے دیتے, because this is the sinful life. اب یہ میں آپ کو نہیں یہ کہہ رہا کہ نہیں جی وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پاکستانی جی وہ دقیانوسی سوچ ہے, محدود سوچ کے حامل ہیں, کنزرویٹو سوچ کے. وہ میرے بھائیوں بہنوں اتنا میں یورپین چرچا کا دس دیا جہاں پہ پچھلے سالوں میں پینٹیکوسٹلز اور کیتھلکس کا اتنا چکر چلتا رہا, پروٹسٹنٹس اور کیتھلکس کی ان کی لڑائی ہوتی رہی. اور آج بھی اگر وہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ بنا شادی کے آپ اولاد پیدا کرو, وہ اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہو. What does it mean? بچے کو نہیں وہ برا کہتے, لیکن وہ ریلیشن کو جس میں آپ آئے ہوتے ہوا, ہمیں کیا کرنا چاہیے, شادی کریں. خود جو سیکرامنٹ کرسچن میرج, اب ہمارے میں زیادہ سے زیادہ پاکستانی ہیں بیٹھے ہوئے, صرف ایک بہن انڈیا سے ہیں, رونق سسٹر ہیں انڈیا سے ہیں, پنجاب سے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو پاکستانی جو لا کی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں پینل کوڈ. تو وہ جو پینل کوڈ ہے لا کی کتاب پاکستان کی, اس میں کرسچن میرج کے لیے لکھا ہوا ہے کہ دس از اے سیکرامنٹ, یہ مقدس رسم ہے, پاکیزہ رسم ہے. اور وہاں پہ یہ لا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہاں پہ یہ شیخ صاحب پڑھ سکتے ہیں آن لائن بھی. اور اسلامک میرج کے لکھا ہوا ہے کہ اٹس این بارگیننگ, یہ چویک چل گیا تو چل گیا, نہ چلے تو نہ چلے. تو اب ہم مسیح ایسی حرکتیں کریں کہ ہم سیکرامنٹ جو ہے اس کو جوا بنا دیں. اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں براڈس پہ آتے ہیں, وہ دو شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے, اور وہ کہتے ہیں جی یسو نے ہمیں معاف کر دیا, ہمارے پادری نے تو سوچ. میں انہیں کہتا ہوں یار یسو مجھے بھی ملا دو, کیڑی بائبل چلو پہ جی وجہ یسو میرے بھی دس دو کتنے ہوتا ہے. تو مطلب جسٹ امیجن کس طرح ابلیس نے ان کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس آل رائٹ, ہم دو بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں, یہ گناہ آلودہ زندگی, اٹ ہیز نتھنگ ود آ کرسچن بلیف ٹو ڈو, ہم ایک رائچس لائف گزار سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے یہ گناہ کے عالم میں زندگی گزارنا, اور آپ اپنے خدا ترس نسل کیسے پیدا ہوگی؟ بائبل میں لکھا ہے خدا سے دعا کرو کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. خدا ترس نسل پیدا ہونے کے لیے خدا ترس رشتہ بنانا پڑتا ہے. جب خدا ترس رشتہ بنائیں گے تو خدا ترس نسل پیدا ہوگی. تو ایسے ہے جی, اس لیے یہ بائبل کی روح سے ٹوٹل غلط ہے. بے تحاشا ریفرنسز ہیں بائبل میں. تو میں ایک کنایت کروں گا ان 3 حوالہ جات پہ فی الحال, تاکہ اور بھی کوئی بھائی بہن بات کرے. اور میں تھوڑا سا پاسٹر جی کی طرف سے بھی کہہ دیا کیونکہ اب وہ تھکے ہوئے ہیں, اس لیے. تو یہ اس طرح سے جی یہ ٹوٹلی غلط ہے بائبل کی روح سے. جس خدا نے ہمیں ماں کے بطن میں پڑھنے سے پہلے ہی, جو بطن مادر میں پڑھنے سے پہلے ہمیں جانتا ہے, نام لے کر جانتا ہے. یعنی جسٹ امیجن ساڑھے ماں پہ سوچتے ہیں ہم جب پیدا ہوتے ہیں اس کا نام کیا رکھے, اس کا نام کیا رکھے, وہ دانت کے اپنا چکر لے آتے ہیں, نان کے اپنا, یا میں تو وہ گلابی اردو والی بات کر رہا ہوں, دانت کے نان کے. ددیال ننیال جو ہے وہ اپنے نام لے آتے ہیں کہ یہ رکھ لو یہ رکھ لو. خدا کہتا ہے میں تو پہلے سے ہی جانتا ہوں, اس سے پہلے کہ تیرا وجود ہوتا کہ تیرا نام کیا ہوئے گا. اتنے ویلیویبل ہیں ہم خدا کے ساتھ. اور اس خدا کی ویلیویبل تخلیق کو, خدا کی محیب تشکیل اور تخلیق کو ہم ایسے لمحوں میں ضائع کر دیں, کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے یہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے. یہ 2 طرح کی تعلیم. پہلا سٹیپ جو آپ کو اس گناہ کی طرف لے کے آتا ہے کہ ڈو ناٹ ہیو سیکس وداؤٹ گیٹنگ میریڈ, شادی کریں اور اس کے بعد. اور یہ بائبل کی روح ہے, یہ کوئی کسی کلچر کی بات نہیں ہے. تو اگر کلچر کی بات کر لیں تو لٹرلی تب بھی غلط نہیں. یسو کہنا یورپین یا ویسٹرن سی, یسو بھی تو ایشین سی. تو اگر کلچر کی بھی بات کریں تو that has nothing to do with it. تو لیکن یہ بائبل کی تعلیم ہے
کہ پاکیزگی کے رشتے میں جڑو, جسको खुदा पाकीज़गी में जोड़ता है उसके सामने इकरार करो. खुदा भी आपकी इज्जत करे, खुदा भी आपको फरोग दे, खुदा भी आपको बरोमंद करे, और उसके बाद आपकी औलाद भी जय बरोमंद पैदा हो. मेरी जब शादी हुई तो मेरी जो एक्स वाइफ है, शी वॉज नॉट सो स्पिरिचुअल, और मजहबी भी नहीं थी, स्पिरिचुअल होना तो दूर की बात. तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा कि ये देखे, मैं अपने टॉपिक बता जाता हूँ. कई दफा पास्टर एंजल मैसेज कर कहती है कि अपनी बातें ना इतनी बताया करो. तो मैं, लेकिन मसीह भाई बहनों से बातें कलाम को जाहिर करने के लिए करने में मैं इसको खुशी महसूस करता हूँ. तो मेरे ज़हन में था खुदा तरस नस्ल, खुदा तरस नस्ल. तो मैंने वी प्रेड आधा पौना घंटा मैं अपने एक्स वाइफ के साथ बैठा, एंड वी प्रेड टुगेदर, लेट अस प्रे टुगेदर, दुआ की. आज जब मैं अपने बेटे में वो क्वालिटीज देखता हूँ तो कहते ये तो मैंने इसको नहीं था सिखाया, मैंने तो इसको ये सिखाया था, ये तो नहीं था सिखाया, ये इसको कहाँ से पता है बाइबल की बात. मैंने कि वो जो मैं गलती में आधा पौना घंटा दुआ की थी ना, ये उसकी ब्लेसिंग्स है. कि भाइयों बहनों, जब क्रिश्चियन मियाँ बीवी होती हो ना, तो सिर्फ बदन को ही ना सोचा करो, जिस्म के चक्कर में ही ना रहा करो. वो गलत बात नहीं है, लेकिन फकत उसी चक्कर में ना रहा करो. ईमान को भी बीच में रखो. कलाम में लिखा है खुदा के लिए वक्त निकालो मियाँ बीवी होते हुए, हर चीज को वक्त दो और खुदा को वक्त दो, ताकि खुदा आपके रिश्ते में बरकत डाले और उस रिश्ते से जो फूल खिले उनमें भी बरकत डाले. तो खुदा आप सबके साथ हो जी. गॉड ब्लेस यू. Amen, amen. Praise Jesus. Amen, amen, amen. Thank you so much, Pastor Reverend Sam. आपने बाइबल के हवाला जात कोट करके जो इसी टॉपिक को आगे लेकर गए हैं, सच्चा इंकरेजमेंट. और मेरा ईमान है जितने फारियों पे भी सुन रहे हैं, दे हैव लर्न समथिंग और दे गेट इंकरेजमेंट. बहुत स्पेशली ड्यूरिंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस बहुत से लोग डिस्करेजमेंट का शिकार हो जाते हैं, और डिस्करेजमेंट में ही इस तरह के जो वो हार्मफुल डिसीजंस लेते हैं. तो थैंक यू सो मच, आपने कलाम के वसीला से जो है बहुत रहनुमाई की. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो हमारी सिस्टर्स हैं, पैनल का हिस्सा है, सिस्टर रोशन है, सिस्टर कैरन है और सिस्टर शमा भी थी. आप ज़रूर जो है जो हमने डिस्कशन की उसके ऊपर बातचीत करें. और उसके बाद मैं आतिफ भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बीइंग अ मेल वो क्या कहते हैं इसके बारे में, और वो कैसे जो है इंकरेजमेंट दे सकते हैं जो मैरिड कपल हैं, क्योंकि वो खुद भी मैरिड हैं, शोहर हैं, बाप हैं. तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन हाउ बीइंग अ मेल यू कैन कंफर्ट योर वाइफ एंड कैन इनकरेज हर टू कि वो कैसा डिसीजन ले पाए. जी सिस्टर रोशन, अगर आप अवेलेबल हैं, आप अपने माइक को प्लीज अनम्यूट करें. जी, प्रेज द लॉर्ड चर्च. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मैं पास्टर अख्तर और रेवरेंड सैम जी को पहले से ही जानती हूँ. मैं पास्टर अख्तर की आवाज़ सुन के इस ब्रॉड पे ठहरी थी, क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे तो मैंने उनको कंटिन्यू किया. एंड इट्स अप्रिशिएटेबल दैट आई एम ब्लेस्ड हियर आल्सो. और सबसे बड़ी बात मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये टॉपिक उठाया, जैसे कि आपने अपना हौसला दिखाया. सो इट इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेबल. वैसे मैं ऐसे कोई शर्म की बात नहीं कहूँगी, क्योंकि वी नीड टू लर्न. अगर हम डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे. तो वो वाली बात है यहाँ पे. और सबसे अच्छी बात मुझे जो, बाकी तो वैसे रेवरेंड सैम जी ने सब कुछ क्लियर अप कर दिया, मुझे कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. और मैं जस्ट एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने भी बोला कि चर्चेस में टाइम टू टाइम जो यंगस्टर होते हैं उनको इस चीज़ के ऊपर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है. देयर आर मैनी पीपल जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द बाइबल. वो बाइबल को फॉलो नहीं करते. इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो कहने को तो हम मसीह हैं, लेकिन अगर बाइबल में जो चीज़ के लिए मना कर ही दिया, चाहे वो किसी को धोखा देना है, चाहे वो कोई लालच है, चाहे वो फिजिकल रिलेशन है, चाहे वो अबॉर्शन है, अगर हमें बनाने वाले खुदा ने मना कर दिया, नो मीन्स नो, तो हम उसके ऊपर कोई बहस नहीं कर सकते. ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग कि हम उसको जाके पूछे कि हाँ हाँ तूने ये रूल क्यों बनाया, हमें तो ये चीज़ ऐसे पसंद है, ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए. नो, ही इज अवर गॉड, सो ही कैन डिसाइड बेटर देन अस. वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा अच्छा डिसाइड करता है.
तो बहस का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, तो अपने आप को जो बाइबल से ऊपर बताते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि वो तो खुदा से ऊपर बन जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम खुदा से ऊपर हैं। ये चीज मतलब जो मैंने फील की। और एक चीज और मैं शेयर करूंगी, जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, लाइक आई वाज लिविंग इन इंडिया एंड आई डिडंट नो अबाउट द गॉड, तो मैं भी ये सोचती थी कि ये गोरों का कल्चर कैसा है, कि ये रिलेशन में आ जाते हैं। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में हमारे इधर वो चीजें हमारे मतलब कल्चर में सिखाई जाती हैं कि बिफोर मैरिज अगर आप रिलेशन में हो तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लाइक कॉमन थिंग्स है ना। तो मैंने सोचना कि ये जो फॉरेनर कल्चर है, कैसा कल्चर है, ये शराबें पीते हैं, ये शादी से पहले रिलेशन में आते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं, ये कैसा खुदा है इनका, है ना। तो मेरी एक नेगेटिव एस्पेक्ट था प्रभु को लेके, हमारे खुदा को लेके, कि ये कैसा खुदा है, इनको क्या सिखाता है ना। और जब मैं खुद मसीह में आई और मैंने बाइबल को अच्छे से स्टडी किया, धीरे धीरे मैंने सीखा कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो मतलब मैंने ये सीखा कि जो प्रभु यीशु है ना, वो सभी जो, चलो वो हम जिस, चाहे लोग उनको देवी देवता कहते हैं या हमारा धार्मिक किताबें कहते हैं बाकी गैर कौमों में, तो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रभु यीशु मसीह है। अगर मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है बाइबल में हर चीज को लेके, शराब को लेके, सेक्स को लेके, अबॉर्शंस को लेके, या और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो हमें परमेश्वर ने हिदायतें दी हैं। मतलब मुझे तब पता चला कि जो हमारा बाइबल का खुदा है वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उसने हमारे लिए इतनी भी शर्तें नहीं रखी कि जिसको हम पूरा ना कर सके। हम खुद ही कुछ ऐसे कल्चर में जा रहे हैं, या हम खुद ही सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए हैं कि हम अपने खुदा को एक साइड पे कर देते हैं। जैसे कि ब्रदर सैम ने भी कहा कि जब हमारी आंखों के आगे से खुदा हट जाता है ना, तो उसका खौफ भी हट जाता है। और जब खुदा हट गया और खौफ हट गया, फिर हम किसी भी दलदल में जा सकते हैं। सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूबसूरत शेयरिंग सिस्टर जी, और खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे। आज आप हमें ज्वाइन कर पाए, और स्पेशली जो जिस टॉपिक को जिस पैसेज का रुख हमने इस टॉपिक की तरफ मोड़ा है ताकि एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। आई बिलीव कि मैनी पीपल जो फाजू पे सुन रहे हैं वो सीख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। रेवरेंड सैम ने यूरोप कंट्री के बारे में बताया कि वहाँ पर आज भी स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर इफ़ दे फाइंड आउट के बॉय और गर्ल जो है विदाउट मैरिज रिलेशनशिप, जो जो है ठीक है फिजिकल उनका रिलेशनशिप है, तो वो उन्हें चर्च नहीं आने देते। और मैं उनकी बात से एग्री करूँगी। इवन माय ओन हस्बैंड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट वो ऐसे हैं कि जैसे वो पाकिस्तानी है। तो यहाँ गोरू में भी हैं जो वैल्यूज़ को रखते हैं, फैमिलीज़ के ट्रेडिशन को रखते हैं, वो ठीक है। जो ठीक है वो ठीक है, वो दुनिया के हर हिस्से में ठीक रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। मैं सिस्टर कैरन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी ज़रूर बात करें। शी इज़ मैरिड, शी इज़ मदर, शी इज़ हाउस वाइफ, वर्किंग वूमेन, तो चर्च में भी जाते हैं, तो वो भी ज़रूर जो है अपने सोसाइटी के हिसाब से या इस तरह का अगर कोई भी उन्हें एक्सपीरियंस हुआ है अपने जो गिल्ड, तो वो ज़रूर बात करें। जी सिस्टर कैरन। शी माइट बी बिजी। सिस्टर आप मुझे मैसेज कीजिएगा अगर आप अवेलेबल हैं। जी प्रेज गॉड चर्च। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी 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 सिस्टर जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सिस्टर जी, बहुत अच्छा टॉपिक जो आपने आज ब्रॉड पे शेयर किया है। आज तक कभी हमने इसके बारे में सुना नहीं, जितनी खूबसूरती से आपने इसको इस टॉपिक को लिया और हम सबके साथ शेयर किया। तो मैं मतलब इस चीज के लिए यही कहूंगी कि शादी से पहले तो जो लड़कियां या लड़के जो इस रिलेशन में जाते हैं, उनके लिए यही है कि बस वो घबरा जाते हैं, उनको मतलब इस चीज का एकदम से पता नहीं चलता, और वो फिर इस गुनाह की तरफ जाते हैं कि वो अबॉर्शन और मतलब ये सब कामों में पड़ जाते हैं। और इवन मैं मतलब मेरे साथ कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, इवन जो मैरिड भी हैं वुमेन, वो अगर 1 से 2 या 3 उनके बेबीज हो जाते हैं, तो वो जब उनका एक चौथा बेबी
वाला होता है, तो वो भी ये डिसाइड करती हैं कि क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी शायद एक शर्म महसूस होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग एक या दो बेबी करते हैं और तीसरे बेबी की दफा वो ये सोचते हैं कि इट्स टू मच लाइक, तो वो शायद उस टाइम भी ये चीज सोचती हैं कि अबॉर्शन करना चाहिए और किसी को पता ना चले। तो ये मेरे सामने 2-3 केस इस तरह के हुए हैं। लेकिन मैं यही बात कहूंगी, जिस तरह से आपने शुरू में भी ये बात कही कि जब हम खुदावन में रह के इन सब चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं, तो हम इन कामों में पड़ते ही नहीं हैं। और क्योंकि खुदावन का जब खौफ हम लोगों की ज़िंदगी में होता है, तो हम अपने खुदावन के जो जो उसने काम हमारी ज़िंदगी में करने होते हैं वो हो जाते हैं। तो मैं इसी चीज़ को कहूँगी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से शुरू में सारा आपने इस टॉपिक को लेके चली, मैंने बहुत गौर से सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिस्टर एंजल आपकी ब्रॉड पे हमेशा कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिससे हम हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छी शेयरिंग होती है। और मैं इस चीज़ को मैं भी काफ़ी देर से आपके साथ हूँ, जब से पास्टर अख्तर ने प्रीचिंग स्टार्ट की थी, मैं तभी से यहाँ पे हूँ। पास्टर सैम को भी सुना, सभी को सुना। तो लेकिन जब आपने भी अपनी ये वाली शेयरिंग स्टार्ट की, तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में मतलब कभी भी किसी भी पास्टर्स या वुमेन पास्टर किसी को भी ये टॉपिक सुना ही नहीं कि वो इतना ओपनली इस बात को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, Sister Karen. You literally making me emotional. बट ये खुदा के पाकरों की हदायत से है, और जिस दौर में हम रह रहे हैं, किसी ना किसी ने इस पे ज़रूर बात करनी है, ताकि ये जो इतना बड़ा गुनाह फैलता जा रहा है इस दुनिया में, और ना सिर्फ इस ब्रॉड के ज़रिए से, मैं इन पर्सन जो है इन मूवमेंट का, प्रो लाइफ मूवमेंट का हिस्सा हूँ। आई अटेंड मीटिंग्स, आई वॉलंटियर इन अ प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द अबॉर्शन बिल्डिंग्स, इस तरह का जो सारा है, तो बहुत बहुत ज़रूरी है बीइंग अ बिलीवर्स, और स्पेशली जब हमारे पास फ्रीडम है इन कंट्रीज़ में होते हुए, हमारा बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम बात नहीं करेंगे तो हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो टोटली बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं, इब्लीस जो है इस काम को बहुत बढ़ चढ़ कर रहा है। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, हमारे साथ हमारी प्यारी बड़ी बहन रिफत ने भी शमूलियत की है, उनको वेलकम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टर जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आपको क्रिसमस की मुबारकबाद, बधाइयाँ। अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पैसेज पे, हमने लूका के अंजील पहले बार की 26वीं से 58 वर्सेस का जो पैसेज है, दुरानिया प्रेगनेंसीज जो हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इस टॉपिक, ये जो मैसेज है, इसमें बहुत बड़े बड़े हमें मैसेज आज सुनने को मिले। पास्टर अख्तर ने बहुत खूबसूरती से बहुत प्यारा मैसेज दिया, रेवरेंड सैम ने, हमारे साथ भाई मूसा थे, और अभी जो हम चौथा टॉपिक लेकर चले हैं इसी पैसेज में से, और जो जितने भी शेयरिंग करने वाले थे, दे ऑल हैड शेयर्ड डिफरेंटली। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हादम जो है एक ही पैसेज को डिफरेंट तौर से जो है पाकरों की हिदायत के साथ आपके सामने शेयर करेगा, लेकिन वो ऑथेंटिक होगा और लोग पर कर पाएंगे। हम शेयरिंग कर रहे हैं 2 ऐसी प्रेगनेंसीज की, मरियम की और मरियम की हालाजाद बहन अलिशबा की, जो प्रेग्नेंट हैं, और उनकी प्रेगनेंसीज जो हैं बिल्कुल हट करें। एक तो पाकरों की हिदायत से है, रूह कुदस ने साया किया। सेकंड जो है बुढ़ापे की प्रेगनेंसी है। जी, आई गिव यू 10 मिनट, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, खुदा आपको बरकत दे। चलिए इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाने से पहले मैं आतिफ भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मेल प्रोस्पेक्टिव भी लेते हैं कि बीइंग अ मेल व्हाट ही थिंक अबाउट दीज 2 विमेन्स। जी आतिफ भाई, ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। रिस्पेक्टेड पास्टर्स, पास्टर अख्तर, पास्टर सैम,
پاسٹر اینجل آپ اور تمام بہن بھائیوں کے ساتھ. بالکل سسٹر جی میں سمجھتا ہوں کہ جو میرج لائف ہے یا یہ جو عہد ہے کرسچینٹی میں سمجھتا ہوں نکاح جو ہے جو ایک شادی ہے وہ ایک بلیسنگ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ادر ریلیجنز میں یہ کانٹریکٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن کرسچن میرج جو ہے یہ ایک بلیسنگ ہے. اور جیسے میری مسز نے بتایا اور میں ان کے بولنے سے پہلے میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ فیئر آف گاڈ جو ہے خداوند کا جو خوف ہے یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اور خاص طور پہ ویمنس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویمنس کو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ویمن جو ہیں وہ ٹریپ جلدی ہو جاتی ہیں. شاید اس کی کیا ریزن ہے آئی ڈونٹ نو کیونکہ یہ ہمیں کلام بھی اس چیز کے کا بتاتا ہے کہ جب ایو کو سانپ نے ورگلایا تو وہ اس کے ٹریپ میں آ گئی اور وہاں سے پھر گناہ کا سٹارٹ ہوا. کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ آدمی تے ناتا دھوتا ہوتا ہے, مطلب کہ آدمی کچھ بھی کر لے تو وہ اس پہ اتنی تہمت نہیں لگائی جاتی جتنی ایک عورت کے اس پہ لگائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو اسمارٹ ہونا چاہیے اور دانائی سے چلنا چاہیے کیونکہ اتنی جلدی ٹریپ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو جو دانائی ہے وہ خداوند کے کلام سے ہی ملتی ہے کیونکہ وزڈم جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے. اور میرج لائف میں فیئر آف گاڈ بہت ضروری ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ان کا سنسیئر ہونا ضروری ہے. جب وہ ایک بدن ایک جان ہوتے ہیں تبھی بلیسنگ آتی ہے. اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے آدمی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو وہ برکت آ نہیں سکتی. تو یہ بہت ضروری ہے. بڑا اچھا آپ کا آج کا مجھے لگا ٹاپک اور کرسمس کی سیلیبریشن بھی ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے ایسا جو لگتا ہے میں نے وہی شیئر کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عورتیں ٹریپ جلدی ہو جاتی ہیں. عورتوں کو جو ہے اپنی شرم و حیا میں رہنا زیادہ ضروری ہے اور عقل اور دانائی وزڈم بہت ضروری ہے ان کے لیے تاکہ وہ ٹریپ نہ ہو جلدی. میں ضرور آپ کی بات کو بڑھانا نہیں چاہوں گی لیکن ایگری آن دس پوائنٹ کہ اسی پیسیج میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے جب وہ مریم کو سلام کرتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کلام سے وہ جو ہے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی. کیا ہو گیا؟ وہ گھبرا گئی اور گھبرانا جو ہے وہ خوف کے اسپرٹ میں ہی اس کو کیا اسے کہتے ہیں ایڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر. تو آئی ایگری ود یو آن دس پوائنٹ کہ جو ویمنز ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں لیکن خداوند عورت سے ہم کلام ہوتا ہے. خداوند اپنے فرشتوں کے ذریعے سے عورت سے ہم کلام ہوتا ہے اور خداوند کسی بھی بیوی سے اس کے شوہر کے وسیلہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے کہ خوف نہ کر. تو جب پارٹنر جو ہے میل پارٹنر جو ہے وائفز کو اس قدر کانفیڈنٹ دیں گے دین جو بیویاں ہیں وہ خوف کی اسپرٹ سے آزاد ہو جائیں گی. ہلیلویا. بھائی آپ کو برکت دے خداوند. آپ نے بہت دلیری سے شیئر کیا اور بہت زبردست ٹاپک اور ویری بلیسڈ اور بہت کچھ جو ہے ہم کلام سے سیکھتے ہیں. ایک ایک آپ جب غور کرتے ہیں ایک ایک بات ایک ایک پہلو کے اوپر تو یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑا اچھا ٹاپک آپ نے شروع کیا اور اس کے اوپر جو دونوں بلیسڈ جو لیڈی ہے جن کا کردار بہت زیادہ سراہا جاتا ہے. میں خود بڑی جو کاہن زکریہ کاہن لشبات سے جو میں بہت زیادہ بلیسڈ ہوتی ہوں اس کپل سے اور بہت کچھ میں نے کافی دفعہ جو ہے اس پہ میسج بھی دیا دونوں کیونکہ اکثر ہم زیادہ بات
जब क्रिसमस का टाइम होता है तो हम ज़्यादातर हमारा फोकस मुकद्दमा के ऊपर या और इस तरह से बहुत सारे करेक्टर्स के ऊपर होता है, लेकिन बहुत कम बात की जाती है इस कपल्स के ऊपर ना। तो ये मेरे फेवरेट कपल्स है, इसलिए कि इनकी जो इनमें जो वजह है कि इनका जो टाइम था, यानी एक तरह से जैसे बाबी रहम और सारा क्या जा था, वो टाइम गुजर चुका था, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, और वो उम्मीद भी इनकी जाती रही थी कि हमारा कोई बेबी हो सकता है। तो इस कपल ने में जो मुझे इन दोनों की बात, जो बड़ी एक छोटी सी बात लिखी हुई है मेरे पास, और ये भी बाइबल नहीं है, तो वहां पे इनके बारे में लिखा है कि वो बेऐब और रास्तबाज थे, और वो खुदावन के साथ चलने वाले। यानी आप देखिए कि उनके पास वो चीज, वो नेमत, वो ब्लेसिंग भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो खुदावन से जुड़े हुए थे, वो कपल खुदावन के साथ जुड़ा हुआ था, और इतनी अपनी बुजुर्गी में भी वो खिदमत कर रहे थे। उनके लोग जो है वो देते हैं चीजें कि हमें ये मिल जाए तो फिर हम खुदावन के साथ चले। बहुत सारे डिमांडेड पीपल अब आगे हैं और हो रहे हैं, और पहले भी थे, लेकिन ये कपल जो है वो डटा रहा, और इतना कुछ इनके बारे में लिखा नहीं, लेकिन ये छोटा सा पैराग्राफ ना इतना पावरफुल है इस ब्लेस्ड कपल के बारे में कि वो खुदावन के साथ जुड़े रहे, खुदावन के साथ चलते रहे, और हम देखते हैं कि वो अपनी बुजुर्गी के यहाँ में भी वो अपनी खिदमत को पूरा, ये नहीं वो मैसेज सुनता है तो दौड़ के चला जाता है, लेकिन वो जकरिया कहा जो अपनी पूरी खिदमत करते हैं, सब्र से चलते हैं, फिर घर जाते हैं और अपना वो काम पूरा करके अपनी बीवी से भी सहारे उन्होंने शेयर किया होगा, और खुदावन ने उनको ब्लेस किया, और 3 माह तक उन्होंने उसको छुपा के रखा, क्योंकि उनकी बुजुर्गी ऐसी थी, हालत ऐसी थी जैसे कि हमारे माशरे में लोग हैं उस वक्त भी वही लोग थे, वही सोच के लोग थे कि इतनी बुजुर्गी में अब इनको याद आया, लेकिन वो नहीं थे समझते कि खुदावन की तरफ से उनको ब्लेसिंग मिली है, और उनके सब्र का जो था वो खुदावन ने इतना बड़ा उनको नाम दिया कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि औरतों से जितने भी पैदा उनसे कोई भी बड़ा नहीं है, ऐसी बख्शिश, ऐसा ही नाम उनको मिला कि खुदावन ने अपनी राह तैयार करने के लिए उस नबी को चुना। सो पावरफुल इस कपल के बारे में मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है। बाकी जो एक और जो चीज मतलब जो हम अभी जो शादीशुदा कपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, या उनके रिलेशनशिप के बारे में, या पहले की बात कर रहे हैं, तो मैंने मैसेज तो नहीं सुना कभी, क्योंकि मैंने अभी ही ज्वाइन किया, अभी ही मैंने जॉब स्टार्ट की, तो जितना मैं सुन पाई उसमें मुझे थोड़ा सा, एक तो इनका दोनों ब्लेस्ड जो हमारी वुमन ऑफ गॉड है मकसमा और वो निष्बात जो है, इनके बारे में आपसे मैंने थोड़ा सा सुना। तो पहले तो बात ये कि खुदावन ने, मैं भी सिस्टर जो थी वो बात कर रही थी, जब खुदावन ने एक चीज को नो कहा है कि नहीं नहीं, तो फिर उसका मतलब है फुल स्टॉप है, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि हम उसमें अपनी मर्जी से कुछ ऐड कर दें। जिस वो आज भी खुदावन जो है, जैसे लिखा है कलाम में कि कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, वो कभी भी नहीं बदलता, उसके रूल कभी भी नहीं बदले, बल्कि वो ये नहीं कि मसीह यीशु के आने से वो थोड़ी सी उसमें जो है वो रिलैक्सेशन आ गई है, या वो थोड़ा नरम हो गया, नहीं, वो वैसा ही खुदा है, वो खुदा हो ही नहीं सकता जो वक्त के साथ बदल जाए, और उसके जो कानून है, उसके जो लॉ है, उसके फरमान जो है वो भी ऐसे ही है। जब उसने कहा कि ये चीज नहीं करनी, तो वो चीज नहीं करनी, वो हो नहीं सकती। जैसे बागे अदन में एक लॉ उसने दे दिया था कि नहीं खाना तो नहीं खाना, चाहे वो कितना भी वो उधर ही था, उसने उसको हटाया नहीं था, उसे रखा ताकि इंसान जो है अपने विल को, अपनी पावर को, अपने माइंड को जो है वो यूज कर सके, उसको रोबोट नहीं बनाया। आज भी खुदा जो है इंसान से यही तवक्को करता है कि वो अपने विल को, अपनी पावर को, अपने अथॉरिटी को वो यूज करे कि कौन सी रात दुरुस्त है, कौन सी ठीक है, और ये जो खुदा जो है इंसान के अंदर जो है काम करता है। लेकिन जो हम अगर इसको अपनी फिजिकली लाइफ के साथ देखते हैं, बहुत सारी स्टोरी, जैसे सिस्टर कहा कि एक यानी वो ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो फिर भी वो इन चीजों को, खुदा की ब्लेसिंग को अवॉइड कर देते हैं कि नहीं शायद ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो, लोग कहेंगे कि अब इतने बच्चे हो गए हैं, फिर इन्होंने ऐसे कर दिया, ये सारी चीजों का फेस हमें करना पड़ता है। लेकिन मैं अभी जब बात हो रही थी, सिस्टर बात कर रही थी ना, तो मेरे दिल की धड़कन जो थी वो तेज हो रही थी, थोड़ी ऐसे अजीब सी ना, मुझे मेरे अंदर जो थी ना वो फीलिंग जो थी आ रही थी, क्योंकि पाखरू जो था मुझे उबार रहा था कि मैं अपनी एक ऐसी टेस्टमनी, अपनी जिंदगी का एक ऐसा पहलू जो है वो
मैंने कभी किसी ब्रॉड पे ये शेयर नहीं किया, तो पाक ने मुझे वारा था कि मैं उस चीज़ को जो है वो शेयर करूं, और मे भी बहुत सारे लोगों के लिए ये सीखने का भी हो, और बहुत सारे लोग जो है मे भी इस दौर से गुजर रहे हों और वो चीज़ें ना करें। सो मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ये एक गवाही भी है और एक बड़ा इमोशनल दौर भी है जिसको मैं शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं खुदावन के पास जाकर भी मैं भी भूल सकती। सो तकरीबन 3 मेरी बेटियां और 1 मेरा बेटा है, और हम पाकिस्तान में थे। तो पाकिस्तान में थे तो तकरीबन मेरा बेटा तकरीबन 2 साल का होगा जब खुदावन ने हमें दोबारा ब्लेस किया। सो उस वक्त जब था, मैं जाहिर है कि आप सब मैरिड है और अगर नहीं भी हैं तो सभी आज ब्रॉड पे भी, और बहुत सारे लोग इस बात को भी नहीं माइंड करते क्योंकि हम कलाम से ये बातें सीख रहे हैं। तो उस वक्त भी मैं कुछ मेडिसिन ऐसी ले रही थी कि ताकि दोबारा प्रेगनेंसी जो है वो ना हो, ताकि बच्चों के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए, इनको ज्यादा ग्रो। और अब हमें खुदावन ने 11 साल के बाद मुझे बेटा दिया, तो अब वो भी नहीं थी कि ये भी ख्वाहिश हो कि अब बेटा हो, ये हो, वो हो। तो खुदावन ने फैमिली को कंप्लीट किया, इस बात के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। लेकिन जैसे ही उस बेटे के बाद खुदावन ने फिर दोबारा ब्लेस किया, तो आप यकीन करें कि जब खुदा की कुदरत काम करती है, जब खुदावन कोई चीज आपको देना चाहता है, तो मेडिसिन भी फेल हो जाती है जो आप ले रहे होते हो, जो डॉक्टर के होता है, वो सब चीजें फेल हो जाती है। और मैं वो चीजें ले रही थी, लेकिन फिर भी खुदावन ने मुझे ब्लेस किया। Praise, hallelujah. आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब खुदावन में आप चलते हैं, तो जब आपका पार्टनर आपके साथ खुदावन के साथ नहीं चलता या उस तरह से वो चीजें, क्योंकि मेरे हस्बैंड कैथलिक से बिलोंग करते थे, और जिस तरह से मैं खुदावन के साथ चल रही थी वो उन चीजों पे नहीं समझते उस वक्त। अब जबकि वो आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब आए हैं तो फिर उन्होंने बपतिस्मा वगैरह लिया, सारी चीजें, लेकिन उस वक्त नहीं था। आज भी वो मेरा दर्द वैसे ही है जैसे उस वक्त था। तो जब खुदावन ने, मैंने उनको बताया कि इस तरह से ये चीजें हुई है, या मुझे फील हो रहा है कि खुदावन ने मुझे दोबारा ब्लेस किया है, और मेरा ये भी ईमान है कि वो मेरा बेटा ही था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब हमारे पास 4 बच्चे हैं तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसको हम जो है ना इस तरह से कर देते, अभी तो स्टार्ट ही है। मैंने कहा नहीं, अब चाहे स्टार्ट है चाहे जैसे भी है, खुदा मुझे, मैं नहीं चाहती कि मैं ये चीज करूं। और काफी दिनों तक हमारी रोज इस बात पे लड़ाई होती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि ये खुदावन की तरफ से है, लेकिन वो हर दफा कहते कि नहीं, जब मैं कह रहा हूँ, जब मुझे नहीं चाहिए। जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुदावन के साथ जुड़े नहीं होते तो जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती है, चाहे औलाद के जरिए से हो, चाहे आपकी स्पेशल लड़ाई ही क्यों ना हो। तो फिर काफी बातचीत करने से, मतलब हर रोज लड़ाई रहने से, एक उन्होंने मुझे बात कही जो मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी। उन्होंने कहा कि तुम इतना ज्यादा इसरार क्यों कर रही हो मुझे इस बात पे। जब मैं कह रही हूँ खुदावन कहते थे, जब मैं कह रहा हूँ, जब खुदावन को भी पता है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उस वक्त हालात भी ऐसे थे, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर तुम क्यों इस बात पे बसी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पता है ये खुदावन के हम कर लेंगे, हो जाएगा, मैं भी जॉब करूंगी, सारी चीजें खुदावन हैंडल, खुदावन के हाथों में देते हैं। कहते नहीं, ये नहीं हो सकता, और मे भी ये शायद मेरा नहीं है, इसलिए तुम इस तरह से कह रही हो। I'm so sorry, Sister G, you went through this. So sorry. I'm so sorry. फिर मुझे वही चीज करनी पड़ी जो वो चाहते थे, लेकिन सिर्फ मेरी माँ के सिवा और मेरे खुदा के सिवा कोई मेरे इस दर्द को नहीं समझ सका। फिर मेरी अम्मी को पता चला, मेरी अम्मी मेरे पास आई, अब वो खुदावत के पास है, उन्होंने मुझे इतना डांटा, इतना गुस्से हुई, इतना रोई, कहते तूने ये क्यों किया। मैंने फिर उनको सारी बात, कहते तू मर जाती पर ये न करती, तुझे नहीं पता ये खुदावत की तरह से ये एक खून है।
चीज करूं। फिर खुदावन ने उसमें से मुझे निकाला और मैं हर रोज रोती थी, हर रोज इस तरह से खुदावन के पास गिड़गिड़ा कर रोती थी। और आज भी मुझे जब याद आता मैं इसी तरह से रोती हूँ, खुदावन से माफी मांगती हूँ। और खुदावन मेरे साथ है, तो मुझे पता है कि उसे मुझे माफ करता, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती। जब भी इन चीजों की बात होती है मुझे ऐसा लगता है मैं दोबारा उस राह पे खड़ी हो गई हूँ, उस रास्ते पे ही हूँ। और खुदावन से हर रोज जब भी मुझे याद आता है मैं खुदावन से माफी मांगती हूँ इस बात के लिए, जितना भी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है वो जिंदगी को न देखे, लेकिन जो उसका इकरार करता है और उसको तर्क करता है वो जिंदगी को पाएगा। तो मेरा जो मकसद था खुदा का वो जो मुझे तैयार कर, मैं भी आज भी बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो खुदावन के साथ इस तरह से सिंसियर नहीं है, उसके कलाम को इस तरह से नहीं लेते, तो वो अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले कर लेते हैं और इस तरह की जिंदगी में उनके साथ ये चीजें होती है। उनको पता भी नहीं होता कि हमने ये गुनाह किया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कलाम में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ। तो ये भी हमारे चर्च की ही जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को हाईलाइट करे, चर्च में पैगाम दिए जाए। नजात का पैगाम बहुत जरूरी है, लेकिन कपल्स के लिए ऐसे पैगाम को भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो चीजों को समझे। क्योंकि हम ज्यादातर जोर देते कि जो शादी से पहले रिलेशनशिप में आकर जो लोग ऐसे चीजें करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमारा फोकस तो उन्होंने ऐसे किया, लेकिन बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में भी ये गुनाह जो है बहुत ज्यादा। मैंने एक शेयर किया, बहुत सारे फैमिली कपल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा किए हैं, बहुत ज्यादा ऐसे गुनाह किए हैं, उन्होंने खून किए, उनके खून रंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और कभी उनको एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन मैं हमेशा अपने हस्बैंड को ये कहती हूँ, आज भी वो कहती हूँ, वो हमेशा कहते थे कि नहीं जब तुम ऑस्ट्रेलिया आओगे, तो जब खुदावन ने हमें ब्लेस किया, हम ऑस्ट्रेलिया का भी आए वो भी आए, तो कहते कि मैंने खोया था या जो मैंने ऐसे किया था या कहा था हम दोबारा मतलब खुदा से, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो वो ही था वो ही है, अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अब जब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी उनकी हो गई है, बेटा सिर्फ रह गया शादी करने वाला, लेकिन स्टिल आज भी दर्द वही है, आज भी दर्द वही है, क्योंकि एक माँ कभी भी उस दर्द को नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती, और जो खुदावन में हो वो तो कभी भी नहीं भूल सकती। So sorry for that. मैं तो इमोशनल हो गई थी। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे, और हम जो खुदावन में चलते हैं, खुदावन हमें ऐसी आजमाइशों से भी बचा के रखे कि हम इन आजमाइशों पे हम पा पाए और दोबारा हम वो चीजें ना कर पाए जो हमने एक दूसरे को शायद अपने रिश्ते को बचाने के लिए या अपने आप को क्लियर करने के लिए किसी तरह से भी हम ये चीजें जो हम करते हम ना कर पाए। God bless you. Thank you. आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आपने इस वेरी वेरी पर्सनल स्टोरी को शेयर हम सबसे किया है, और इस टॉपिक का रुख जो है इस तरफ मोड़ने का मकसद भी यही था कि हम जो है स्पीक आउट हों, बोलें, ताकि जो ऐसे बेटे बेटियां स्टिल इन पाकिस्तान, हम अब्रॉड में हैं, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा सोर्सेज हैं, या वी आर मोर कॉन्फिडेंट देन द पीपल हु लिव इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, लोग बोलना शुरू हों, ताकि ये जो एक, मैं इसे कहती हूँ ये लानत है, अबॉर्शन इज़ अ लानत, ठीक है, इसको ख़त्म किया जाए हमारी सोसाइटी में से, हमारे घरानों में से, हमारी कलीसियाओं में से। तो हम सब जो है आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए क्लैप करते हैं, और मैं पास्टर अख्तर से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस प्यारी बहन के लिए, बेटी के लिए ज़रूर दुआ करें, और भी जितनी हमारी बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं या हमें फाड़ियों पे सुन रहे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी एज ए टेस्टिमनी, आई नो अ वुमन वेरी पर्सनल जो है वो भी इसी दुरानिए से गुजरे, जिनके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो ना बेबी को लें, ठीक है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड किड्स। दवाइयाँ खाने के बावजूद जो है द किड सर्वाइव्ड, और इस कदर सर्वाइव्ड हुआ कि वो जो बच्चा है डिलीवर्ड भी हुआ, हेल्थी डिलीवरी हुई, किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई,
खुदा ने उस बच्चे की ज़िंदगी को ऐसे रखा जैसे खुदावंद पाखरू की प्रोटेक्शन रही हो। और आज मैं उस बेटे को पर्सनल भी जानती हूँ, ही इज़ अ पास्टर इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो ऐसे भी वाक़यात हमें मिलते हैं कि जब वो खुदावंद हाथ रख कर जो है महफूज रखता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन ज़िंदगियों के लिए। इधर यूएसए में लोग ज़्यादा ओपन हैं, जैसे सिस्टर जी बता रही थी। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं, शी इज़ कंसर्वेटिव, शी इज़ फ्रॉम बैप्टिस्ट चर्च। ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और बाइबल को स्ट्रिक्टली पढ़ना, चर्चिस की सर्विसेज को अटेंड करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे रफ़ाक़त रखना। लेकिन ये कुछ 3-4 माह की पहले की बात है। वी वर सिटिंग टुगेदर इन हर कार एंड दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू माय प्रोसीजर्स एंड रिकवरी प्रोसेस। जैसे आपको पता है कि आई हैड अ मेजर हिस्टेरेक्टमी इन जून। और and she know I don't have kids, and she was literally crying like a baby non-stop, and I had no idea what happening, why she's crying, you know. तो जब मैंने उससे पूछा तो कहती है कि when she was in her youth, जब यंग थी, जवान थी, she had 2 abortions. And after those abortions, since that day and today, she never have a peace. Never have a peace. Even have she have other son, which she loved till death. But still, जो loss, जो decision उसने लिया, वो उसकी पूरी life में उसको hunt कर रहा है. Even though she go to church, she part of different projects in a church. तो मैंने उसको जो है जैसे मैं इंकरेजमेंट दे पाई मैंने दी, और सिस्टर रिफत ये आपके लिए भी है। और जितनी हमारी बेटियां जो जो है एक्सीडेंटली या किसी भी तौर से जो है, ठीक है, ये इस तरह का वाक़या उनकी ज़िंदगी में हुआ, आप सबकी इंकरेजमेंट के लिए बाइबल के रूह से जो है, जो बच्चे होते हैं वो पाक होते हैं, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जैसे लाइफ बिगन थ्रू द कंसेप्शन जो है, जैसे मेडिकल टर्म में उसे फीटस कहते हैं, मैं उसे फीटा नहीं कहती, फीटस नहीं कहती, वो बेबीज हैं, बच्चे हैं, क्योंकि बीइंग अ बिलीवर्स दैट्स व्हाट वी बिलीव। जब वो बच्चे जो हैं इस दुनिया से चले जाते हैं किसी भी वजह से, तो वो डायरेक्ट जो है यीशु मसीह के पास होते हैं। हालेलुया। किसी भी तौर से यू हैव लॉस्ट योर बेबी, योर child, they are with the Christ, but how you can overcome on your trauma, जो trauma अभी तक बेटियों को और आई बिलीव के मेल्स को भी हार्म डाउन करता है, आप उसको रिपे ऐसे ही कर सकते हैं कि आप नजात को हासिल करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, ताकि जब आप आसमान की बादशाहत में दाखिल हो, then you can reunite with your children. पर अगर आप नजात को हासिल नहीं करेंगे, कंटिन्यू गुनाह में रहेंगे, कंटिन्यू गुनाह की जिंदगी को बसर करेंगे, then you can never meet your child again, और आप और आपका बेबी जो है वो कभी भी कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। तो सिस्टर जी, आप खुदा की बेटी हैं, और इसी तरह जो जितनी भी बेटियां हैं जो खुदावंद को मानती हैं, जो खिदमत में हैं, जिन्होंने नजात को हासिल किया है, we always have a eternal hope through Christ, हालेलुया। और हमने उस होप को जो है, उम्मीद को कभी छोड़ना नहीं है, because we also traveling through this world, इस दुनिया में हम भी जो है एक मुसाफिराना जिंदगी बसर कर रहे हैं। Sooner or later we all heading to same path, और वो बात जो है हमें यीशु मसीह से कनेक्ट करता है, वो बात जो है हमें कनेक्ट करेगा हमारे जो प्यारे यीशु मसीह में सो चुके हैं, किसी भी एज में हैं, बट अगर वो यीशु मसीह में सोए हैं, then we will be reunited in heaven, hallelujah। जी सिस्टर जी, आपका माइक अनम्यूट था। हाँ जी सिस्टर जी, इसमें मैं वो बात को ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने भी जो है मारिया की जो बुक है वो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें उसने मेंशन किया हुआ था कि जब वो आसमान पे गई तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे, तो बहुत ज़्यादा छोटे भी थे, यानी जैसे ऐसे
मतलब है वो पूरी थी, खुदावा ने तो उनको पूरा ही बना के भेजा ना, या जी उस तरह जी से जैसे भी है। हम्म, जैसे कि हमारा तो बिल्कुल स्टार्टिंग 1 वीक ही था, तो लेकिन स्टिल आई फील मत वो जो फीलिंग है मुझे आज भी वैसे ही है। तो मतलब वो जो था, यानी उसने लिखा हुआ है कि मतलब जो जैसे बच्चे, जैसे अभी आपने कहा कि एक्सीडेंटली या जैसे भी हो जाता है, तो उसने खुदावन से पूछा कि ये इतने सारा बच्चे जो है खुदावन जी, ये कौन है, ये कैसे है, क्योंकि उनका एक सेपरेट ही एक वो जगह थी जहाँ पे वो बच्चे थे। तो खुदावन ने कहा कि ये वो बच्चे हैं कि जो किसी न किसी तरह से वो मेरे पास आ जाते हैं या उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये सारे बच्चे वो है। तो कहते फिर आप इनका क्या करेंगे, तो खुदावन ने उनको जवाब दिया उनके अकॉर्डिंग कि जो माएँ नजात याफ्ता होंगी, जो नजात पाएंगी, ये बेबी मैं उनको दूंगा, तो ये उनके लिए है ये और माँ नहीं नजात पाती, बाप नहीं नजात पाते, तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं उनको दूंगा जो नजात याफ्ता होंगे, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं जो है ब्लेसिंग जो डबल लुटाऊंगा, तो ये ब्लेसिंग उनकी डबल होगी, और वो परेशान ना हो, वो मतलब जिस तरह से भी हो, लेकिन उनके बच्चे जो है वो मेरे पास है। और जब मैंने भी इस बात को पढ़ा था तो मेरे पे भी बहुत तसल्ली हो, जब भी परेशान होती हूँ इस बात को लेकर खुदावन के पास जाती हूँ, तो खुदावन मुझे यही तसल्ली देते हैं कि वो मेरे पास है और मैं आपको दूंगा। और क्योंकि तू मेरा काम कर रही है, बहुत सारी रूहें जो है वो बची हैं, अपने इन बच्चों को जो मैंने मिराज के तौर पे दिए, इन तोड़ों को तूने सही इस्तेमाल किया, इनको वो राह बताई है। जब भी कभी मैं होती खुदा मुझे ये तसल्ली देती कि वो मेरे पास है। तो एक ऐसा मामा होते हुए मुझे वो बहुत ज्यादा वो फीलिंग उस समय नहीं रोक पाती आपको, जब मैं इसको बयान करूं या मैं इसको जो याद करूं, मेरा ईमान है कि वो खुदावन के पास है, और खुदावन जो है वो उसको महफूज रखे हुए है। ऐसी बहुत सारी बहनों के लिए भी ये आपकी बात को बढ़ाते हुए, सेकंड करते हुए कि आप जो है वो बुक को भी पढ़ें, तो आसमान एक हकीकत, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, जो कि एक्सटर्नली जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जब ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर जाते हैं। तो खुदावन आपको बरकत दे। That's it. Thank you. आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, और आपने बुक को भी मेंशन किया है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जी पास्टर अख्तर, अगर आप अवेलेबल हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप ज़रूर जो है सिस्टर रिफत के लिए दुआ करें, और हम सब के लिए भी दुआ करें, पैनल पर जितने भी हैं, और जैसे पाक आपको गाइड करे। अगर आप अवेलेबल हैं, कुछ शेयरिंग भी करना चाहते हैं, आपके पास मौका है। आप काफ़ी देर से माइक को म्यूट करके बैठे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जी पास्टर एंजल, ज़रूर मैं दुआ भी करूँगा, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि फिर हम उस टॉपिक पे आ जाएं, और फिर इस पे भी आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी यीशु की भी बात करेंगे, ठीक है? जी जी ज़रूर ज़रूर। तो इस बेटी की, जब ये बेटी रिफत अपनी कहानी या अपनी सच्चाई या अपना जो वाकया सुना रही थी, मैं इसके साथ रो रहा था। मेरा दिल जो था ना भर आया था इस बेटी के लिए, और ये अच्छा हुआ कि आपने मुझे कहा कि इस बेटी के लिए दुआ करें। दुआ से पहले मैं इस बेटी को एक बात कहूँगा, जिस तरह इस बात को अभी तक ये बेटी भूलती नहीं है, और उसको अभी भी ये वाकया जो है वो दुख पहुंचाता है। तो मैं इसको यही कहूँगा कि बेटे, कलाम में लिखा है कि पिछली सब बातों को भूलकर अब आगे को बढ़ते जाएं, और अब आगे देखें। जो हो गया ठीक है, खुदावन ने आपकी दुआ को सुन लिया, खुदावन आपको प्यार करता है, आप खुदावन में इत्मीनान पाएं, तसल्ली पाएं, और तमाम हमारी जिंदगियों में भी बहुत से वाक़ियत, बल्कि जितने बैठे हैं कोई नहीं कह सकता, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या जरूर होता है जो उसको कांटे की तरह चुभता रहता है। लेकिन जब हम कलाम पर नजर करते हैं तो कलाम कहता है कि अब आगे को हम बढ़ें,
पिछली बातें पीछे छोड़ें और आगे को बढ़ें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद ने आपको और भी बच्चे दिए हैं और बच्चों के बच्चे देखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, हमारी दुआ है, और आप तसल्ली पाए। तो आज का जो टॉपिक था, मैं भी एक अमेरिकन लेडी को जानता हूँ, वो भी बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की खातून है जो अबॉर्शन के खिलाफ हमेशा डटी रहती है। उसने मुझे बताया ओबामा की हुकूमत में वो इस मसले के अंदर जेल भी काट कर आई है और आज भी वो इसके हक में नहीं है, और वो क्योंकि वो बाइबल स्कूल गई हुई है, कलाम को जानती है, कलाम से वाकिफ है, तो अक्सर मेरी उससे ये बात होती रहती थी। तो मैं आखिरी में शाबाश देता हूँ पास्टर एंजल को, जिसने इस नाजुक टॉपिक को भी छेड़ा, जिससे हमें हमारे बच्चियों को सीखने का एक मौका मिला कि वो दिलेरी के साथ खुलकर इस पर बात करें, क्योंकि हम सबका ताल्लुक पाकिस्तान से है और हमारी सोसाइटी जो है हम सभी जानते हैं, और हमारे स्कूलों कॉलेजों में भी कभी भी इस टॉपिक को पर नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि यहाँ तक कि माएँ भी अपनी बेटियों से या बेटियाँ अपनी माओ से इस टॉपिक पे बात करने से कतराती हैं। तो और उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, हमने देखे भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके यहाँ किसी बेटी का इसी तरह प्रेगनेंसी हो गई बगैर शादी के, लेकिन माँ बाप ने बड़ी अक्लमंदी की और उन्होंने उस बच्चे को इस दुनिया में आने दिया, और वो बच्चा या बच्ची आज भी इतने अरूज पर है, और वो बच्चा है जिसको हम यूं कह लें कि इलीगल बच्चा, या जो भी हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमारे माशरे में, मुझे अच्छा नहीं लगता वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना। बहरहाल वो जो बच्चा शादी से पहले ही इस दुनिया में आ गया या आ गई, वो इतना बच्चा खुदावन के नाम को जलाल दे रहा है या दे रही है, मैं उसको जानता हूँ। अगर उसके बच्ची गलती कर गई, ठीक है, माँ बाप अक्ल मानते हो, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया और उस बच्चे को इस दुनिया में आने दिया। तो ये अच्छा है कि बजाय उसको ज़ाया किया जाता और खुदा की नज़र में भी मुजरम ठहरते, कातिल बनते, तो बाज़ दफ़ा हमारे माशरे में हमारी बेटियां बेटे गलतियां कर बैठते हैं, हो जाता है माशरे में, तो लेकिन हमें उनको ज़रूर कलाम में से उनकी तरबियत करनी चाहिए। बेटी पास्टर एंजल ने शुरू में एक बहुत अच्छा फिक्रा बोला था कि ना हवार जुए में, हमारे पास नौजवान पास्टर थे या वो खुदा के खादम थे मूसा जी, उन्होंने इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई थी, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। मे भी वो आ जाए दोबारा हमारे पास अभी। तो पास्टर सैम जी ने भी बड़ी तफसील के साथ इस बात को बयान किया, मैं सुन रहा था, तो जब मैंने बेटी रिफत की बात सुनी तो मैं खुद रो पड़ा था। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान ने सही होती हैं, देखी होती हैं, उसके ज़िंदगी का हिस्सा बनी होती हैं, लेकिन फिर भी बेटे हमें इसमें से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं निकलेंगे तो इससे काफ़ी हमारी सेहत को भी नुकसान होगा। तो खुदावन हर चीज़ को देखता है और खुदावन हर चीज़ को जानता है। तो खुदावन बड़ा ही मेहरबान खुदा है, बड़ा ही रहम करने वाला। वो कहता है तुम्हारे गुनाह कितने भी गिरमिज़ी क्यों ना हो, तो वो हमें हौसला भी देता है, माफ़ भी करता है। हम सब की कहीं ना कहीं कोई स्टोरी ज़रूर मिलती है। जवानी के आलम में हम सब होते हैं और कई दफ़ा बहक जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अच्छे भले खादमों को भी बहकते देखा है, गुनाह में गिरते देखा है। पास्टर साहब ने दाऊद नबी की मिसाल पेश की
और हम देखते हैं सुलेमान को देखते हैं तो बड़े बड़े खुदा के खादम भी करते हैं, लेकिन जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं और उसके कदमों में आ जाते हैं तो खुदा जो है वो माफ़ करता है। और ये ज़रूर है जैसे उन्होंने बताया था कि पहले पशेमान होना, फिर इकरार करना, फिर तर्के गुनाह करना। हमने पास्टर सैम से ये भी सीखा था। तो ये ज़रूरी है कि हालांकि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब हम पशेमान होते हैं, जब हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ना शुरू करता है तो खुदा उसी वक्त हमें माफ़ कर देता है। तो पशेमान होना अपनी गलती पर और फिर उसका इकरार करना और फिर उसको तर्क कर देना, लेकिन बाज़ दफ़ा हम तर्क करके भी फिर दानिस्ता तौर पर गुनाह की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक हालत है, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो वाइंड अप इस मैसेज का यही है, इस टॉपिक का जिसको हमने थोड़े से टाइम में बहुत बहुत डीपली शेयर किया, डिस्कस किया है, और कोशिश करेंगे कि जैसे वीमेंस डे आए या मदर्स डे आए, देन वी कैन प्रिपेयर और अरेंज अ प्रॉपर जो है आप इसे कह लेंगे, क्या उसे कहते हैं कि जो है एक सेशन रखा जाए पूरा दिन जो है सिर्फ इसी टॉपिक पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत की जाए, अवेयरनेस को स्प्रेड आउट किया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि रवायात या जो ट्रेडिशंस हैं आप उनके ऊपर बड़ी बात करते हैं, लेकिन मेरा मकसद यही होता है कि जैसा टाइम चल रहा है, जैसी महफिल है, उसी हिसाब से बातचीत की जाए तो आई गेस दैट्स मोर ऑथेंटिक। ठीक है, जैसे ये त्यौहार है, इस त्यौहार में अगर इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट किया जाए तो बहुत ज़्यादा बरकत मिलेगी। फिर से रिपीट करती हूँ कि जैसे मरियम थी, मरियम कुंवारेपन की हालत में रूह कुद्स ने उस पर साया किया और वो हमला हुई। मैनी वीमेन्स कैन रिलेटेड विद दैट सिचुएशन। बहुत सी औरतें जो शादी के बंधन के बगैर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आप हमेशा मरियम के किरदार को अपने आगे रखें कि मरियम ने क्या किया। मरियम ने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, और जो बाइबल के रूह से रिपेंटेंस जो है, अपने गुनाहों का इकरार जो है, वो आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में या किसी भी सिचुएशन ऑफ लाइफ में कर सकते हैं। दैट्स द फ्रीडम वी हैव इन क्राइस्ट। हालेलुया। तो आप कभी भी पशेमंदगी में या शर्मिंदगी में ही ना झगड़ी रहें, बल्कि जो है खुदावन के पास आए, खुदा माफ़ करता है। जो डाकू, चोर, कातिल जिन्होंने इतने लोगों का कत्ल किया होता है, अगर खुदा उन्हें माफ़ कर सकता है जब वो माफ़ी मांगते हैं, तो खुदावंद आप बेटियों को भी माफ़ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सेकंड, अलिशबा जो है, जिनको खुदा ने बुढ़ापे में औलाद बख्शी। मैं पर्सनली इधर यूएसए में सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव में एक पास्टर की फैमिली है। देयर फर्स्ट बोर्न डॉटर्स आर ट्विंस, और वन ऑफ डॉटर इज माय वेरी वेरी गुड बेस्ट फ्रेंड। और वो पास्टर जो हैं उनके 12 बच्चे हैं। गोरू की फैमिली है, 12 बच्चे हैं। खुदा ने उन्हें 3 टाइम जो है ट्विंस बेबी दिए हैं, और उनका घर ऐसे है कि जैसे कोई हॉस्टल होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है कि बड़े बहन भाई जो है छोटे बहन भाइयों की टेक केयर करें। एंड दे बोथ आर यंग, दे आर इन देयर लेट 50s, अर्ली 50s एजेस हैं पास्टर की और उनकी मिसिस की। दे सेट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर मैनी बिलीवर्स, इवन फॉर देयर ओन चिल्ड्रन, कि उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी प्रेगनेंसीज हुई है, नेचुरली प्लान्ड और अनप्लान्ड जो है, उनको होने दिया, और खुदा ने उनको इतनी खूबसूरत फैमिली दी है। और वो जो फैमिली है, वो उनके पास एक वैन है अपनी, जिसमें जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है ना वैन्स लगी होती हैं बस स्टेशन पर जो है, उस तरह के उनके पास वैन है। और वो जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, उनकी मिसेज जो है वो होम स्कूलिंग करवाती है बच्चों को। इस तरह के एग्जाम्पल्स को, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को आप अपने सामने रखें। अगर कभी भी जिंदगी में जैसे अलिशबा की एज है, बुढ़ापे में अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, यू शुड बी फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि खुदावन ने आपके जोड़े को चुना है, मियाँ बीवी को चुना है, कि अगेन ही गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी
to lead a godly generation. Hallelujah. खुदावंद आज की शेयरिंग के वसीला से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा बरकत दे. खुदा की शुक्र गुज़ारी करते हैं.